कितना रिफंड मिल सकता है एक स्टूडेंट को टैक्स फाइल करने में, कितने $1000? वेलकम कनाडा के लिए एक सेपरेट एप्लीकेशन होती है, न्यू कमर्स एप्लीकेशन, अपने आप की या किसी और के साथ की, बट मेरे को बेनिफिट्स आज तक कभी नहीं मिले और मैं न्यू कमर था। मैं पहले H&R ब्लॉक में काम करता था, which is the biggest company for tax preparation services in the world. A lot of people don't know कि provincial की भी tuition credits होते हैं। तो not only do you get a 15% federal credit, but आपको 5% का और इससे भी ज्यादा provincial credit भी मिलता है। जितने भी क्वेश्चंस आपने मुझे भेजे थे मैंने सारे क्वेश्चंस उनसे पूछे, प्लस कुछ मेरे एडिशनल क्वेश्चंस मैंने उनसे पूछे। जो न्यू कमर्स हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, या जो वो लोग वर्क परमिट पे हैं, वो अपना टैक्स लायबिलिटी कम कैसे कर सकते हैं एंड अपना रिफंड मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। So Shiv, a little bit about you, what you've been doing, how you've been helping students. My name is Shiv and मेरी एक कंपनी है टैक्स मोबाइल जो मैंने 7 साल पहले शुरू की थी। Actually, I've been doing taxes for people for over 11 years now. मैं पहले H&R ब्लॉक में काम करता था, which is the biggest company for tax preparation services in the world. And वहाँ पे a lot of people took a liking to me and how I did my work. I truly felt that ये मेरी calling है life में, that I should be doing taxes for people and helping people in that regard. School में भी जब जाता था Ryerson, वहाँ पे भी I was studying accounting as well. But taxes is something that I was really interested in. So anyways, H&R Block में बहुत काम किया, मैं वहाँ पे instructor भी था, तो I used to teach people how to do taxes there. जब मैंने अपनी कंपनी शुरू की थी, बस motto यही था कि we want to offer a very affordable service, we want to offer a very convenient service. तो पहले साल में to address this, we would charge less than a third of the cost of any of our competitors out there. And the second thing was कि convenience का जो factor था, service का जो factor था, जो we wanted to improve on, is that I used to actually drive to people's houses with a portable printer and a laptop. And वहाँ पे ही मैं, that's how हमने अपनी foundation build की थी हमारी कंपनी के लिए। और पहले साल में हमारे पास 150 clients थे। और fast forward to today, हम अपने 7 साल में जा रहे हैं and we have over 6,000 clients now. And हम कॉर्पोरेशन बहुत सारे कॉर्पोरेट टैक्सेस करते हैं, बहुत सारे पर्सनल टैक्सेस करते हैं. So we help everybody, not just students, but that's how we've kind of started. And इस साल, I'm really happy to say that हमारी जो टीम है, पिछले साल से we had around 6 employees and now we have over 20. Wow. And we're growing at a very fast pace. And I'm just happy that people like you are also interested in just knowing a little bit more about us and helping us spread our information and knowledge to everybody. Amazing. I always try to bring out जो लोग सच में they have a helping attitude, right? चलो let's get on to the questions. मेरे पास बहुत सारे questions हैं आपके लिए, तो I hope you'll be able to help a lot of people out there with your answers. Okay? Of course. तो सबसे पहला basic question जो मेरे पास था कि CRA अकाउंट बनाना मुझे पड़ेगा या should I even have a CRA अकाउंट taxes फाइल करने के लिए? Yeah, तो पहला क्वेश्चन था कि CRA अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा या नहीं. सो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि a lot of our clients से कि आपने मेरा CRA अकाउंट कभी क्रिएट किया या नहीं. हमारा जो एक्सेस होता है, हमारा अकाउंटेंट लेवल एक्सेस होता है. हमारे पास एक स्पेशल पोर्टल होता है जहाँ पे हम अगर सिन नंबर डालते हैं अपने क्लाइंट का, हमें उनका CRA अकाउंट का जो भी डिटेल्स होता है उसमें दिख जाता है. अगर क्लाइंट को या किसी को CRA अकाउंट का वो एक्सेस चाहिए, they have to actually register for a user ID and password. अब दूसरी चीज ये है, what's the benefit of having that account? वो बेनिफिट बस यही है कि आपको टैक्स डिटेल्स मिल जाती है अपनी टैक्स हिस्ट्री की, जो भी फाइलिंग हुई है पिछले सालों में. आपको आपके जो बेनिफिट्स के जो डेट्स होते हैं और अमाउंट्स होते हैं वो भी दिख जाते हैं. और अगर कुछ T4s होते हैं या कुछ और टैक्स स्लिप्स होते हैं स्कूलिंग के लिए फॉर इंस्टेंस, वो भी यूजुअली उस अकाउंट में दिख जाते हैं. बट नन ऑफ दिस इज नेसेसरी टू फाइल योर टैक्स रिटर्न. तो अगर आप हमें कांटेक्ट करते हो और आपके पास CRA अकाउंट का कुछ एक्सेस नहीं है या आप वरीड हो कि CRA अकाउंट क्रिएट करना है बिफोर फाइलिंग द टैक्स रिटर्न, इट इज नॉट नेसेसरी. ओके, that's actually very helpful. नाउ मेरा अगला क्वेश्चन है कि आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ अ स्टूडेंट के कि मैं तो बस एक स्टूडेंट हूँ कनाडा में, मैं क्यों टैक्स फाइल करूँ, मैं तो यहाँ का सिटीजन भी नहीं हूँ. राइट. तो ऐसा है कि देखो, जब आप कनाडा आ जाते हो टैक्स पर्पसेस के लिए यू आर कंसिडर्ड अ रेजिडेंट. और ये चीज भी है कि आपको you're probably thinking कि why should I file my tax return अगर मैं कुछ पैसे ज्यादा नहीं बनाता and all this, और अगर जॉब भी ना हो. आपको जब टैक्स फाइलिंग when you do tax filing आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं. उसमें ये बेनिफिट्स
It doesn't necessarily mean कि आपकी income हो या आप school गए. It's not related to that. बस by filing your tax return आपको benefits की entitlement शुरू हो जाती है. और कई benefits होते हैं. पहला benefit ये है आपका GST, HST tax credit. जो टैक्सेस आप पे करते हो चीजें खरीदने के बाद कनाडा में, उसका रीएम्बर्समेंट ये होता है. दूसरा बेनिफिट आपका है कार्बन रीबेट. जो गैस प्राइसेस पिछले कुछ सालों में इंक्रीज हुई हैं, उसका रीएम्बर्समेंट है ये. और फिर आखिरी में एक यूजुअली एक प्रोविंशियल बेनिफिट भी होता है. तो इट डिपेंड्स ऑन व्हिच प्रोविंस यू लिव इन. बट जैसे कहो अगर आप ऑन्टेरियो में रहते हो तो फिर आपको एक ट्रिलियम बेनिफिट मिलता है. कॉस्ट ऑफ लिविंग का ये एक बेनिफिट होता है. अगर आप सस्कैचुआन में रहते हो तो आपको एक लिविंग सप्लीमेंट मिलता है, वो भी सिमिलर होता है. तो it depends on which province you're in. And हमारी जो company है, it's a virtual service. तो जब भी आप हमें contact करते हो, we can provide these services all over the country. हमारे जो 6,000 clients हैं, they're all over, not just in Ontario. तो if I understand correctly, income हो या ना हो, मैं just Canada 2 दिन पहले आया हूँ, मैं 31st दिसंबर को ही क्यों ना लैंड हुआ हूँ, I can still and I should still file taxes. Yes, exactly. अगर आप कनाडा में एक ही दिन आते हो या 2 दिन आते हो या 3 दिन आते हो, इससे भी ज्यादा आते हो, you can file the tax return. And by doing that, आपको ये जो benefits मैंने अभी बताए ना, ये मिल जाते हैं. ये benefits usually जुलाई से शुरू होते हैं of the following year. तो अगर आप दिसंबर में आते हो या उससे पहले, आपकी ये जो बेनिफिट्स हैं ये जुलाई फॉलोइंग ईयर से शुरू हो जाते हैं. एक और चीज मेरे को पूछनी थी. आई रिसेंटली फाउंड आउट कि ये जो वेलकम कनाडा बेनिफिट नाम से एक चीज है, इट्स काइंड ऑफ अ मार्केटिंग की एक चीज है. ऑफिशियली सीआरए ने कोई वेलकम कनाडा नाम से कोई बेनिफिट नहीं बनाया. एम आई करेक्ट? ऐसा कुछ थोड़ा इसके वेलकम कनाडा बेनिफिट के बारे में इफ यू वांट टू शेड सम लाइट ऑन. या आप एब्सोल्युटली करेक्ट हो कि ये एक मार्केटिंग टर्म है. बट एक चीज तो है, आपको बेनिफिट्स मिलते हैं इसके लिए. और इसका मीनिंग क्या है बिहाइंड वेलकम कनाडा? ये बेनिफिट्स आर रेफरिंग टू फ्रॉम द डे यू लैंडेड टू अप्रैल ऑफ 2025. तो अगर आप दिसंबर में आते हो और जैसे मैंने कहा अगर आप टैक्स फाइलिंग करते हो, आपके बेनिफिट्स जुलाई फॉलोइंग ईयर से शुरू हो जाते हैं. अब वेलकम कनाडा के लिए एक सेपरेट एप्लीकेशन होती है, न्यू कमर्स एप्लीकेशन, जो हम ऑल्सो सबमिट करते हैं. ये बेनिफिट्स जो आपको इवेंचुअली मिल जाते हैं वेलकम कनाडा के, जो पीपल लाइक टू कॉल इट, इट्स द सेम बेनिफिट्स, द जीएसटी, कार्बन रिबेट और प्रोविंशियल बेनिफिट. बस यही डिफरेंस है कि you get it for the period from the day you land to April 2025. तो उस पीरियड के बेनिफिट्स ये होते हैं. और टैक्स फाइलिंग करने के बाद जुलाई से वो बेनिफिट शुरू हो जाते हैं. Okay, तो कोई ऑफिशियली ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट द सेम बेनिफिट्स. उसको पैकेज करके बोलने का तरीका अलग अलग है सबका. It's a simple way of saying these 3 benefits. And I think the history behind it is that this one company started it a very long time ago, a couple of years ago, jab immigration ka thoda sa, it was a very common question that everybody asked. And that person actually called it Welcome Canada. I think on Google there's like an article about it. I saw the article of the company that started this. That's how I found Yeah, exactly. Yeah. So एक कंपनी थी, उन्होंने मशहूर कर दिया ये. और अब सारे इसको ऐसे ही रेफर करते हैं वेलकम कनाडा को. Thank you so much for clarifying that. I think it's going to help a lot of people. इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का खासकर एक बहुत पर्टिकुलर क्वेश्चन मेरे पास हमेशा आता है कि मैंने सुना है कि मेरी फीस का 15% मेरे को क्रेडिट मिलेगा, रिफंड मिलेगा. इज दैट ट्रू? मैंने $20,000 फीस दी है. Yeah, it's true, but there's some conditions, or it's not like fully true in some regard. I would explain it as this. Tuition एक टैक्स क्रेडिट होता है, और एक टैक्स क्रेडिट का यूज ये होता है कि आपका टैक्स रिड्यूस करता है. बट अगर आपकी इनकम ज्यादा नहीं होती जहाँ पे आपको टैक्स देना पड़े गवर्नमेंट को, तो फिर ये जो क्रेडिट्स होते हैं ना, आपके फाइल पे रह जाते हैं और फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं. अब जैसे मान लो कि 20,000 की फीस हो, जैसे आपने मेरे को बताया, तो इसका 15% का क्रेडिट बन जाता है, और ये है $3,000, राइट? अब ये $3,000 की जो आपकी जो इनकम होगी, उस पे जो टैक्स बनेगा जो आपको देना हुआ होगा, उसको रिड्यूस करने के लिए ये क्रेडिट्स का यूज होगा. अब जब ये टैक्स ओइंग कम हो जाएगा ना, हम इसको कंपेयर करेंगे विद हाउ मच टैक्स आपने साल में ऑलरेडी दे दिया. ऐसा है कि जब आप काम करते हो किसी के लिए, आपके एम्प्लॉयर ऑलरेडी आपसे टैक्सेस निकाल लेते हैं हर पे चेक से और गवर्नमेंट को दे देते हैं. तो हमारा जॉब बस यही होता है कि देखना कि कितना आपने देना था और कितना आपने दे दिया. अगर इट टर्न्स आउट कि आपने ज्यादा दे दिया तो फिर आपको ज्यादा रिफंड मिलता है, और अगर आपने कम टैक्सेस पे किया
तो फिर आपको डिफरेंस वापस गवर्नमेंट को देना पड़ता है। इसी में ट्यूशन का यूज होता है। तो यूजुअली अगर आपने ज्यादा टैक्सेस दिए हों और आपको कुछ देने नहीं होते, क्योंकि हमने ट्यूशन का यूज किया आपके टैक्सेस को रिड्यूस करने में, ट्यूशन क्रेडिट्स का, तो फिर आपको और रिफंड वापस मिल जाता है। तो इनडायरेक्टली तो आपको सेविंग्स हो जाती है और आपको पैसे यूजुअली मिल जाते हैं। Yeah. देयर इज वन मोर थिंग आई वांट टू से कि आपने 15% का मेंशन किया था, तो 15% का इट्स ट्रू इन सम प्रोविंसेस आपको 15% का क्रेडिट मिलता है, ये एक फेडरल क्रेडिट होता है। Mhm. बट देयर इज ऑल्सो, और ये फेडरल टैक्सेस के अंदर जाता है। लॉट ऑफ पीपल डोंट नो कि प्रोविंशियल टैक्सेस भी होते हैं, एंड इन सम प्रोविंसेस प्रोविंशियल की भी ट्यूशन क्रेडिट्स होते हैं। तो अगर आप फॉर इंस्टेंस ब्रिटिश कोलंबिया में रहते हो, तो नॉट ओनली डू यू गेट अ 15% फेडरल क्रेडिट, बट आपको 5% का और इससे भी ज्यादा प्रोविंशियल क्रेडिट भी मिलता है। इट डिपेंड्स ऑन व्हिच प्रोविंस यू आर इन। आई थिंक सिमिलरली इन न्यूफाउंडलैंड एज वेल, और नोवा स्कोशिया rather, you also get the provincial tuition credits as well. That's amazing. Thank you so much. I don't think बहुत लोगों को ये बात पता थी कि 15% से भी ज्यादा मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट प्रोविंस यू आर इन। जैसा आपने बताया, आप बहुत सारे लोगों के टैक्सेस फाइल करते हो, तो Yeah. एक नॉर्मल कितना रिफंड मिल सकता है एक स्टूडेंट को टैक्स फाइल करने में? कितने $1,000, $100 कितना मिल सकता है? I think that's a great question. तो देखो, अगर आप कनाडा न्यूकमर हो and you came to Canada in the year 2024, average is that you could be getting up to $2,800 to $3,000. That's the most someone would get. Average mein, it's usually around $2,300 or anywhere between $2,000 to $2,300. And agar aap December mein aate ho, to phir you can get around $1,800 as well. Now dekho, there's some people jo ye video dekhenge aur unko lagega ki main to 2023 December mein aaya tha, to main us saal ki bhi ab filing kar sakta hu. So just for that you will get around $1,700 for 2023. And then for 2024, it could be another $1,800 to $2,000. So overall, you could be eligible up to $4,000 agar aap December 2023 mein aaye. It varies, but I would say average is anywhere between $2,500 to $4,000 on average. That's actually not bad. एक क्वेश्चन मेरे किसी फॉलोअर ने एक क्वेश्चन भेजा था कि उन्होंने अपने जो रजिस्टर्ड अकाउंट्स होते हैं, थोड़ा सा इफ यू वांट टू एक्सप्लेन दैट, कि टीएफएसए और एफएचएसए मैक्स आउट कर लिया है, अभी टैक्स बचाने के लिए और कुछ ऑप्शंस हैं उनके पास? That's a great question as well. पहले मैं बताता हूँ कि क्या FHSA and TFSA है। TFSA का मतलब है टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट। FHSA उसका मतलब है फर्स्ट होम सेविंग्स अकाउंट। अब ये जो टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट है, ये एक रजिस्टर्ड अकाउंट होता है जहाँ पे आप पैसे डाल सकते हो और इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट्स तो बहुत लोगों को अब पता होना चाहिए, इट्स बिन वेरी पॉपुलर ओवर द पास्ट कपल ऑफ इयर्स। सो जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हो और उस पे पैसे बनाते हो, रिमेंबर कि आपको यूजुअली इस पे टैक्सेस पे करना होता है। अब अगर आप ये पैसे एक टीएफएसए अकाउंट में डालते हो और इन्वेस्ट करते हो, तो फिर टैक्सेस देने की कोई जरूरत नहीं होती अगर आप कुछ प्रॉफिट बनाते हो। तो दैट्स द बेनिफिट ऑफ हैविंग अ टीएफएसए। एफएचएसए में बेनिफिट ये है कि इसमें आप जब पैसे डालते हो, ये भी इन्वेस्ट कर सकते हो। एक और बेनिफिट है जो टैक्स रिटर्न में मिलता है, इट्स कॉल्ड अ टैक्स डिडक्शन, सॉर्ट ऑफ सिमिलर टू द ट्यूशन टैक्स क्रेडिट, but it's a little bit different, but it's sort of similar to it. But ये भी आपको, it increases your refund as well. तो ये भी एक extra benefit है। अब तीसरा benefit ये है कि ये पैसे आप निकाल सकते हो उस अकाउंट से, घर खरीदने के लिए यूज कर सकते हो और इस पे कुछ टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं होती। FHSA का कंपैरिजन हम यूजुअली RRSP अकाउंट से करते हैं, रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान अकाउंट में। बस सेम है FHSA, इट्स द सेम अकाउंट। द ओनली डिफरेंस है कि जब आप पैसे निकालते हो उस अकाउंट से, आपको उस पे टैक्स पे करने की जरूरत हो। तो FHSA इज लाइक द कॉम्बिनेशन ऑफ द RRSP एंड द TFSA। तो आपको बेनिफिट मिलता है कि कुछ टैक्सेस देने की जरूरत नहीं होती जब आप पैसे निकालते हो, और एक और बेनिफिट होती है RRSP जैसे, वेयर यू गेट द टैक्स डिडक्शन एज वेल। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ओके, सो अगर किसी ने TFSA एंड FHSA मैक्स आउट कर लिया, दे कैन स्टार्ट लुकिंग इनटू मैक्सिमाइजिंग RRSP एज वेल। Exactly, yeah, they can also do that. अगर आप ये दोनों accounts, if you maximize them, then you can go over to the RRSP as well. Another question that I got from my followers is that why should I even use a professional? मैं क्यों किसी professional को पैसे दूं? मैं खुद क्यों नहीं कर सकता इधर उधर से देख के सीख के? Yeah, I think that's a really good question, क्योंकि हमारी जो industry है, we have some software online जहाँ पे आप खुद ही अपना टैक्स फाइल कर सकते हो, but
the problem is that जब आप अपना tax return file करोगे, who's going to make you understand कि taxes का system कैसे चलता है? Who's going to give you the tips so that future में जब आप और earnings करोगे, how to save on taxes? And then अगर CRA आपको कभी कुछ audit करेगी, क्योंकि वो कर सकते हैं, you know, they might demand some proof of what you're claiming. उसको proof करने में you will need the help of an accountant. You know, all that is offered by an accountant that has a company that is providing tax filing services. So I think it's always recommended कि आप एक accountant, you know, you use an accountant to file your tax return. As long as the service fee होती है, as long as it's affordable. जैसे हमारी कंपनी है, we usually on average only charge people $45. तो ये एक बहुत affordable cost है और इसमें आपको year round service मिलती है and you get assistance with all the CRA matters. अगर कुछ समझाना हो आपको, we are always there to do that. And आपका जो tax return है, we discuss all those results with you as well. ये सारी चीजें अगर किसी को $40-50 में सारा solve हो जाता है, तो why would you do it for free? It doesn't, you know, it's not the, I would say, the most smart thing to do, I would say, right? And I'm going to share a personal experience here. मैंने, while I was a student, मेरे को नहीं पता था, right? I paid $300 to a company जो मुझसे per employment के हिसाब से उन्होंने पैसे लिए. उन्होंने बोला आपने 3 जॉब करी है तो हम आपसे per employment के हिसाब से लेंगे. And मुझे बहुत later realize हुआ कि I was overcharged by a lot. So that's what I would say, right? हमारी जो industry है, they know that कि जो लोग हम उनके पास आते हैं टैक्स फाइलिंग के लिए, उनको ज्यादा कुछ पता नहीं है प्राइसिंग के बारे में. तो इसीलिए मैंने अपनी कंपनी शुरू की थी because I wanted to do things at a very affordable cost. Affordable to the point कि अगर आप अपने आप भी कर सकते हो free में, you will still choose us, right? So that's the thing. और I understand कि लोग को अपने आप करना होता है जब fees कोई $300 चार्ज कर रहे हो, right? I can understand, but अगर कोई $40-50 में आपका काम कर रहा है और आपको अच्छी सर्विस दे रहा है, तो फिर I think you should always choose that to make sure nothing is done incorrectly. 100%, I completely agree with you. One of the questions that I also had, मेरा personal question भी है कि if किसी ने कोई job नहीं करी, they are self-employed, या फिर कोई एज अ कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं जहाँ पे उनका जिसके साथ भी वो काम कर रहे हैं वो टैक्स नहीं काट रहे, तो हाउ कैन दे plan their taxes or save on their taxes? It's a good question again. So self-employed individuals का थोड़ा सा different होता है. The downside only is कि usually बहुत लोग budget नहीं करते कि उनको taxes pay करना है जब साल खत्म हो जाएगा. अगर आप payroll पे काम करते हो तो फिर आपके employer तो automatically आपसे taxes ले जाते हैं, तो आपके पास कोई choice नहीं होती. Self-employed individuals का downside बस यही है कि budgeting का you should do that a little bit. You know, have a little bit money set aside for taxes. Now the positive, which is with self-employed individuals, is कि आप expenses claim कर सकते हो. तो अगर आप ऐसे मान लो कि आपने 50,000 कमाए हो, आप इसके against expenses claim कर सकते हो. अगर आप जैसे मानो IT का काम करते हो और घर से काम करते हो, तो अगर आप rent पे करते हो, utilities पे करते हो, phone का bill हो, इन चीजों को आप सारा डिडक्ट कर सकते हो अपने इनकम के अगेंस्ट, और जो बचा हुआ होता है ना उस पे ही आपको टैक्स पे करना होता है. यूजुअली अगर किसी को समझ हो कि टैक्सेस का थोड़ा सा बजटिंग करना हो, तो आई वुड ऑलवेज चूज टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड. कि ओवरऑल एट द एंड ऑफ इट यू पे अ लॉट लेस इन टैक्सेस बिकॉज ऑफ दैट. और सेल्फ एम्प्लॉयड में भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है. आप सिम पे काम कर सकते हो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, या कॉर्पोरेशन भी खोल सकते हो और उसके अंदर भी काम कर सकते हो. कॉर्पोरेशन खोलने में टैक्स रेट और भी कम हो जाता है वर्सेस पर्सनल, और अगर कॉर्पोरेशन भी खोलनी हो तो वी डू दैट एज वेल, एंड वी आल्सो फाइल फॉर कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न्स एज वेल. Amazing. My next question is, and it's going to sound very basic to you, but मैं अपने एम्प्लॉयर से गुड टर्म्स पे नहीं हूँ. वो मुझे पे स्टब तो क्या मुझे कुछ नहीं दे रहा है, राइट? ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग. उसने मुझे T4 नहीं दी, तो अभी क्या होगा? एवरी एम्प्लॉयर की ऑब्लिगेशन ये है कि बाय द एंड ऑफ February of every year to submit the T4s for their employees. So even if you are not on good terms और आपको कुछ T4 नहीं मिल रहा, आपका you're not able to get in contact with your employer, आपके CRA अकाउंट में ये T4 eventually दिख जाएगा. और अगर आपके पास access ना हो, then you can always contact a good accountant that has access to the CRA account portal, and we can do that for you as well, right? You don't need to worry too much क्योंकि उनकी obligation होती है इन चीजों को सबमिट करने के लिए. Okay, that's actually very helpful. Thank you so much for answering that. एक और मेरे पास क्वेश्चन है. एक मेरा कोवर्कर था जब मैं काम करता था, एंड उसने मुझे बोला कि यार मैं ना 2 साल टैक्स फाइल नहीं करूंगा, मैं सीधा 3rd ईयर करूंगा ताकि मुझे बहुत बड़ा चेक मिले, बहुत बड़ा अमाउंट मिले एक साथ. तो हाउ डू यू फील अबाउट दैट? इज दैट एडवाइजेबल? ऐसा करना चाहिए? देखो, एडवाइजेबल आई वुड से
I would say no, because ऐसा है कि even if आप 2-3 साल वेट करो और एक ही बारी में सारी फाइलिंग कर दो, हाँ आपको एक ही बारी में बहुत बड़े चेक्स मिलेंगे, but it's not going to be any higher than if you would have done it on a yearly basis on time. ऐसा नहीं है कि आपके जो पेमेंट्स हैं वो डबल ट्रिपल हो जाएंगे और वेट करने से आपको और भी बेनिफिट्स मिलने थे, ऐसा कुछ है नहीं। अगर डाउन साइड बस यही है कि अगर आपने टाइम पे फाइल किया होता तो आपको जल्दी बेनिफिट्स मिल जाने थे, चाहे भी हो इंस्टॉलमेंट्स में हो एंड व्हाट नॉट। तो why wait 3 years when you can get your benefits today itself? Especially in this economy as well, I would say कि in the past few years cost of living हमारे country में बहुत बढ़ गया है, लोगों को पैसे की बहुत जरूरत है। तो I would advise कि जल्दी से जल्दी you should be filing your taxes on time ताकि आपको आपके बेनिफिट्स मिल जाए। My next question is कि अगर किसी से टैक्स फाइलिंग करते हुए कोई मिस्टेक हो गई है लास्ट ईयर, लाइक हाउ कैन दे करेक्ट इट दिस ईयर, या कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है उसका? या वो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है, बट यूजुअली एवरीथिंग इज करेक्टेबल, लाइक एवरीथिंग कैन बी करेक्टेड। दो यूजुअल वेज होते हैं कि कैसे करेक्ट कर सकते हो। पहला वे है कि अगर आपके पास सीआरए अकाउंट का एक्सेस हो, आप उस अकाउंट में जा सकते हो और चेंजेस कर सकते हो अपने रिटर्न के लिए। दूसरा है कि आप एक अकाउंटेंट को कांटेक्ट कर सकते हो और वो सिचुएशन को देख सकते हैं और उस हिसाब से दे कैन रीफाइल विद देयर सॉफ्टवेयर और डू इट इन द सीआरए अकाउंट। अगर करेक्शन करना हो तो आई हाईली एडवाइज कि आप एक अच्छे अकाउंटेंट को कांटेक्ट करो उन चीजों के लिए। राइट, इफ यू हैव ऑलरेडी आपने एक गलती कर दी है, व्हाई डू यू वांट टू मेक द सेम मिस्टेक अगेन, राइट? एग्जैक्टली। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट मैंने लास्ट ईयर किसी अकाउंटेंट से टैक्स फाइल कराया था, आई एम नॉट हैप्पी विद देयर सर्विसेज। क्या मुझे जिंदगी भर एक ही अकाउंटेंट यूज करना पड़ेगा या मैं हर साल चेंज कर सकता हूँ? नो, आप हर साल अकाउंटेंट चेंज कर सकते हो। इन फैक्ट अ लॉट ऑफ आवर कस्टमर्स दैट कम टू अस दे ऑलवेज से कि हमने इन लोगों के साथ टैक्स फाइल किया था, इन लोगों के साथ किया था, एंड द सर्विस वाजंट ग्रेट और दे ओवरचार्ज्ड अस। तो अ लॉट ऑफ दीस कस्टमर्स कम टू अस एंड वी आर हैप्पी टू असिस्ट देम, क्योंकि दोस पेन पॉइंट्स जो कस्टमर्स के हैं, अफोर्डेबिलिटी एंड कन्वीनियंस, वी सॉल्व ऑल ऑफ दैट हियर। Amazing. And I think my final question would be कि since you file a lot of taxes, सबसे common mistakes क्या हैं जो newcomers कर रहे हैं while filing their taxes? Yeah, number one mistake जो हम देखते हैं is either वो tuition की filing भूल जाते हैं, या जो newcomers होते हैं by the way, with the tuition I want to expand a little bit. What I mean by that is कि लोगों को लगता है कि अगर आप tuition नहीं claim कर सकते इस बारी अपने tax savings के लिए, क्योंकि अगर आपने कुछ काम नहीं किया हो या income ज़्यादा नहीं थी, तो उनको लगता है कि वो tuition claim ही ना करे। But the problem is that you do have to claim it in order for you to use the credits in the future. Even if आप claim करोगे, ये credits carry forward हो जाते हैं अगर use भी ना हो। तो ये एक चीज़ होती है जो मैं commonly देखता हूँ। दूसरी बहुत common चीज़ जो मैं देखता हूँ, which comes from other people contacting us from that have used previous services, के बोलते हैं कि देखो मैंने tax return की filing की, अपने आप की या किसी और के साथ की, but मेरे को benefits आज तक कभी नहीं मिले और मैं न्यूकमर था। और इसको solve करने के लिए usually we resubmit everything on their behalf. And if there's anything we need to do to contact the CRA to speed up the process, वो भी हम करते हैं। और usually ये सारे जो issues होते हैं ना, 1 महीने के अंदर सारे लोगों को अपने benefits मिल जाते हैं अगर उनको कभी पहले ना मिले हो। तो we solve all this for them, and these are the 2 most common things that I see. Wonderful. I think you have answered all my questions, and I think anybody who watches this video is going to get immense value out of this video. बहुत सारी information नहीं तो मेरे को भी पता चली है, but thank you so much. This has been very helpful. I think a lot of international students and newcomers especially जो मुझे देखते हैं, they are going to contact you. What is the best way to get in touch with you? Yeah, so I think the best way to get in touch with us is हम एक link डाल देंगे YouTube video में, and you can just click that link. उसमें बस अपना नाम, phone number और email डाल देना, and we will reach out to you as soon as possible to get the process started. I also want to say that Piyush, it's been an absolute pleasure to talk to you. I really, in my journey to find people to work with, not only that जो भी हम काम करते हैं वो honest काम करते हैं, we try to provide a service at an affordable cost, but जिसके साथ हम काम करना चाहते हैं, जैसे आप हो, it's someone that we respect as well. Right. It's not just anybody, and I think the value that you do and put out for your clients is very respectable, and I thank you for the opportunity, and I really, if there's anything I can do for you ever in the future, you let me know at any time. For sure. Thank you so much. And I think I would like to add that I have a very strong filter when I decide to work with somebody. So
I've only heard good things, positive things about your brand. So that's why we're doing this, right? In the first आपने place. हमारी और आपने हमारी Google review search की थी, which is something that not a lot of people do. So I really commend you for that. आपने वहाँ पे गए, you looked at the reviews, and some of our reviews are so fantastic. People are leaving paragraphs telling us how great the service was. So I'm really fortunate for that, and I'm fortunate for you to be working with someone that's like you in your space. So I do my research, yeah. That's why. it's great, awesome. Wonderful. Thank you so much. थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारी नई नॉलेज मिली होगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। टैक्स मोबाइल से कांटेक्ट करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में लिंक दे दिया है। दे आर एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड, यू कैन टॉक टू देम, एंड बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से वो लोग टैक्स फाइल करते हैं। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ऐसी वीडियोस लाने का मोटिवेशन मुझे मिलता रहता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।